Good morning, students. I hope all will be fine. Now, today we will study what are the universal gates. Till now, we have completed gates, application of the gates, laws of the Boolean algebra, principle of unity. Now, the today's topic is universal gates और इसमें हम यूनिवर्सल गेट्स को डिस्कस करेंगे और प्रूव करेंगे. देयर आर टू यूनिवर्सल गेट्स NAND एंड NOR और प्रूव करेंगे व्हाई NAND एंड NOR आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स. नाउ व्हाट आर यूनिवर्सल गेट्स? यूनिवर्सल गेट्स आर दो गेट्स हैं, वन इज NAND and another one is NOR. These are also called derived gates because NAND is derived from and NOR is derived from OR. NAND and NOR are called universal gates as any circuit diagram having any type of gate can be drawn using only NAND or NOR gate. That is why it is called the universal gate. Now, first of all, let us take the example of NAND gate and prove it why NAND is called the universal gate. Now, take the example of NAND gate. NAND gate is opposite of AND gate, that is complementary of the AND gate. Now, if NAND is used as a universal gate, so first of all, we will use NAND as NOR gate. Means हम NAND gate को यूज करेंगे and we will get the output of the NOR gate. Now, what is NAND gate? NAND gate is what? Complementary of the AND gate. This is your AND gate. Bubble लगाया. Now it is NAND gate. Suppose here is X. There will be Y. But being not is a unary gate, so दूसरी इनपुट भी सेम रखेंगे. इसको आप ऐसे बाइफरकेट भी कर सकते हो. यहां से X लिया क्योंकि इसको हम एक इनपुट तो दे ही नहीं सकते. It is a binary gate. So minimum inputs that I have to give it, that is the two inputs. One is X, so other will be the same X. Now this is bubble. Now X, ये जो D है, it is AND gate represented by dot operator X and bubble represent inversion. This is what? This is the NAND gate. Now input is X, output is X and X whole complement. Now, can anyone tell me that is this the output of the NOR gate? No, because NOR gate में ये था, this is your NOR gate, और अगर इसको X इनपुट देते हैं तो आउटपुट इज X कंप्लीमेंट और X बार. तो इट मींस यहां पे आउटपुट है X एंड X होल कंप्लीमेंट. तो ये दोनों चीजें सेम तो नहीं ना हो सकती. तो हाउ कैन वी से दैट दिस इज. नाउ हाउ कैन वी से दैट कि ये आउटपुट जो है ये NOR की ही आउटपुट है. दैट आई हैव ऑलरेडी प्रूव्ड दैट कि NOR गेट में क्या है, अगर X इनपुट होगी तो जब इस पे NOT लगाएंगे तो आउटपुट विल बी X कंप्लीमेंट. तो यहां पे X इनपुट दी बट वी डिड नॉट गेट X कंप्लीमेंट. इंस्टेड ऑफ दिस वी गेट X एंड X होल कंप्लीमेंट. नाउ टू प्रूव इट, let us take the result which is X and X whole complement. Now just keep in your mind the laws which you have studied in your previous video. Now, is there any law
which you can apply here. The most important law is the De Morgan's law, जिसको हम डी मॉर्गन थ्योरम भी कहते हैं, which is very important. So what is the De Morgan theorem? It says the complement of product term is equal to sum of individual complement. This is the complement, this is the product term. Product term means A and B. This is sum of the individual complement. Here apply it. The complement of the product term is equal to sum of individual complement. Now DM law लगा. अब यहाँ पे देखो, when a variable is odd with itself, result is variable itself. Which law? It is idempotent law, which we have already studied. Now this is the idempotent law. Now what does it convey? It conveyed that if input is x, the output will be x bar or x complement. It means NAND is working as NOT gate. So it is proved that NAND can act as a NOT gate. Now take the second example, that is now NAND as what? AND gate. अब हम NAND को लेंगे और उसे दूसरा बेसिक गेट बनाएंगे. As far as syllabus is concerned, we have to draw the NOT from NAND, AND from NAND, and OR from NAND. So NAND has AND gate. Again take another NAND gate. So this is the AND gate. बबल लगाया, NAND बना. यहाँ x ले लेते हैं, यहाँ y. अब आपके माइंड में आता है यहाँ पे सिर्फ एक इनपुट ली, यहाँ दो ली, बिकॉज़ इट इज ए यूनरी. क्योंकि नॉट जो है यूनरी गेट है, तो इसके लिए एक ही इनपुट लेनी है. दिस इज द बाइनरी गेट, तो दो इनपुट ले ली, x एंड y. आउटपुट विल बी x एंड y होल कंप्लीमेंट. कंप्लीमेंट आया बबल से, और ये जो डॉट आया दैट इज फ्रॉम द एंड. अब जो आउटपुट आपके पास आई है, इसको आपने फिर से बाइफरकेट करके एक और NAND गेट को दे देना है. तो जब ऐसे देंगे तो एक इनपुट इधर से ऐसे आ जाएगी x एंड x कॉम्प्लीमेंट. एक जो इनपुट होगी इस तरफ से आएगी x एंड x होल कंप्लीमेंट. और यहाँ पे NAND है तो बबल, और जो बबल होगा उसकी जगह पे कंप्लीमेंट आ जाएगा, और जो ये वाला है इसकी जगह पे AND आ जाएगा. सो दिस इज आउटपुट. अगेन इट इज quite difficult to understand कि is this the output of AND gate? No, this is not. But it is. कैसे? Let us prove it. अगर इसको हम देखें तो अच्छी तरह से बेटा इसको अंडरस्टैंड करना. This is not so simple, but it is also not very complex. Now ये है आपके पास रिजल्ट x and y complement, then dot x and y complement, then whole complement. Now अगर हम इसको ऐसे देखें, अगर मैं इस पार्ट को ले लूं, ये वाला पार्ट, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट. सपोज इसको मैं ले लेता हूं a डॉट b, और क्लियर हो गया. ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, तो ये का कंप्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टर्म इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीमेंट्स. अगेन क्या हुआ? अगेन डी मॉर्गन्स क्या लॉ लगा. तो अब बन गया x एंड x कंप्लीमेंट, दूसरी तरफ था x एंड x कंप्लीमेंट. द कंप्लीमेंट ऑफ द प्रोडक्ट टर्म, इनका सम ऑफ इंडिविजुअल, तो जो बड़ा वाला कंप्लीमेंट है वो इंडिविजुअल पे आ जाएगा. अब इसको फिर से देखो, ये जो टर्म है और ये टर्म है, इट इज जस्ट लाइक ए होल कंप्लीट डबल कंप्लीमेंट. इन्वोल्यूशन मैंने आपको बोला था, किसी को दो बार उल्टा करेंगे तो वो सीधा हो जाएगा. तो इन्वोल्यूशन लॉ क्या है? x एंड y और x and y when a variable is complemented twice, result is variable itself. तो यहां कौन सा लॉ लगा? It is involution law. Now एक टर्म ये, एक टर्म ये. Idempotent law, when a variable is odd with itself, again it is idempotent law. When a variable is what? It is odd with itself, result is variable itself.
So answer final is x and y. Is it proved? From where we have started? X and y. What we get? X and y. It means NAND is working like the. Is this the output of AND gate? Yeah, it is the output of AND gate. It means NAND is working as AND gate. Now, last but not the least, now third example is NAND as what? NOR gate. NAND as NOR gate. Now NAND को यूज करेंगे और तीसरा बेसिक गेट बनाएंगे. Again we will take, this is the AND gate. इधर से इनपुट x, इधर से भी x लेंगे, x and x होल कॉम्प्लीमेंट. अगेन एक और NAND लेंगे. बेटा ये जो डायग्राम्स हैं इनकी तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. तो हियर इट इज y and y कॉम्प्लीमेंट. इधर भी y, इधर भी y. तो ये दोनों सेम हैं तो हम इनको बाइफरकेट भी कर सकते हैं. ये दोनों सेम हैं तो बाइफरकेट कर सकते हैं. तो यहां से दो NAND गेट लिए. अब ये जो दोनों आउटपुट्स हैं बोथ इन दोनों को एक और NAND से जोड़ेंगे. नाउ द रिजल्ट विल बी x and x कॉम्प्लीमेंट. ये आ गया. यहां से आया y and y कॉम्प्लीमेंट. इसकी जगह पे आ गया डॉट, इसकी जगह पे आ गया कॉम्प्लीमेंट. डॉट मीन्स एंड. नाउ इज दिस OR gate? No. But we can make it as a OR gate. कैसे? Again सेम फार्मूला लगाओ. ये एक टर्म, ये दूसरी टर्म, दोनों प्रोडक्ट टर्म बन गई. उनका कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू सम ऑफ इंडिविजुअल कॉम्प्लीमेंट. तो लगाया मैंने डी मॉर्गन्स लॉ. देन ये हो गया. अब उसके बाद when a variable is complemented twice, result is variable itself. Now x and x, y and y, कौन सा लॉ लगा? इन्वॉल्यूशन. आप इसको एक ही टर्म समझे. अब x and x इक्वल टू x, y and y इक्वल टू y. तो यहां पे आपका लगा idempotent law. When a variable is ANDed with itself, result is variable itself. When a variable is ORed with itself, ANDed with itself, result is variable itself. Now we have taken x and y and we got x or y. But कहीं पे भी OR गेट नहीं है, कहीं पे भी AND गेट नहीं है, कहीं पे भी NOT गेट नहीं है. इसका मतलब NAND can be used as NOT gate, NAND can be used as AND gate, and NAND can be used as OR gate. Now, in the similar way, we will prove NOR as what? Universal gate. तो जब भी आपको आता है why NAND is called universal gate, तो आप ये तीन डायग्राम्स बनानी है और प्रूव करना है कि how NAND. Sometimes it is asked how many NAND are used to create NOT gate? Only one. How many NAND are used to create the AND gate? Two NAND gates. And how many NAND gates are used to create the OR gate? तो तीन OR gate, तीन NAND gate से OR बनेगा, दो के साथ AND बनेगा और एक के साथ NOT बनेगा. Now let us start with the next, that is how NOR gate is used as a universal gate. Now NOR gate. NOR gate. We have just studied NAND, and NAND as a universal gate. In a similar way, we will prove that how NOR is used as a universal, means how NOR can be used to create NOT gate, AND gate and OR gate. Now take first example.
नॉर एज नॉट गेट। अगर आपको पिछला समझ आ गया होगा तो उसमें थोड़ी सी चेंज करेंगे। कैसे बनाया था वहां, तो हमने वहां पे नैंड गेट लिया था, बट यहां पे वी विल टेक नॉर गेट। तो दिस इज द नॉर गेट, ये आ गया आपका नॉर गेट और ये बबल आ गया। नाउ सपोज हियर इट इज x, it is x, it is x or x, or is logical addition, and this is the complement, this is the NOR gate, this is the NOR gate। अब यहाँ पे बाइफरकेट करेंगे, यहाँ से x लेंगे। क्यों बाइफरकेट क्यों किया, सिंगल इनपुट क्यों ली, बिकॉज नॉट इज ए यूनरी गेट। अब इधर से भी x, इधर से भी x, x और x फुल कंप्लीमेंट अगेन। दिस इज नॉट द आउटपुट ऑफ नॉट गेट। कैसे प्रूव करेंगे, इट इज x और x full complement, which implies x complement and x complement, again it is DM law। अब मैं DM लिखूंगा, DM मतलब डी मॉर्गन्स लॉ। द कंप्लीमेंट ऑफ द सम टर्म इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीमेंट। इसको फिर सिंपलीफाई करेंगे, इंडेम्पोटेंट लॉ लगेगा, व्हेन a variable is ANDed with itself result is variable, now it is indempotent law। प्रूव हो गया कि नॉर कैन वर्क एज नॉट गेट। नाउ टेक द सेकंड एग्जांपल। नाउ नॉर एज और गेट। अब आपके माइंड में होगा कि पिछली बार तो पहले मैंने एंड बनाया था, अब मैं और बना रहा हूं। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है जो मोस्टली आप बच्चे भूल जाते हो। ये मैं आपको लेक्चर के बाद बताऊंगा कि मैंने ऐसा क्यों किया। नॉर एज और गेट, अगेन दिस इज द नॉर गेट। यहां से x लिया, यहां से y। सिर्फ फर्क क्या है, वहां नैंड लगाया था, यहां नॉर। तो आउटपुट आ गई x और y, नॉर की आउटपुट है। इसको फिर से बाइफरकेट किया, फिर से एक नॉर गेट लगाया, अगेन द रिजल्ट इज x और y कंप्लीमेंट। इसकी जगह क्या आएगा, फिर से और फिर x और y कंप्लीमेंट, बबल से बन जाएगा होल कंप्लीमेंट। अगेन इसको सिंपलीफाई करेंगे तो इट इज x और y कंप्लीमेंट प्लस डॉट x और y कंप्लीमेंट इंडिविजुअल। द कंप्लीमेंट ऑफ सम टर्म इज प्रोडक्ट इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इंडिविजुअल कंप्लीमेंट। एक इंडिविजुअल कंप्लीमेंट इसका अपना था और एक जो बड़ा होल कंप्लीमेंट था वो डिवाइड होके आधा आधा दोनों पे आ गया। अब इस पे इन्वॉल्यूशन, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, यहां पे फिर से कौन सा लॉ लगा, इट इज डीएम लॉ। नाउ इन्वॉल्यूशन लॉ, x और y, when a variable is complemented twice result is variable itself, involution। now ये एक टर्म ले लो और ये एक टर्म, तो यहां लिख देते हैं कौन सा लॉ है, इन्वॉल्यूशन लॉ। नाउ एक टर्म ये है, एक टर्म, दोनों सेम है। when a variable is ANDed with itself result is variable itself, तो result is x और y। it means दो NOR गेट लगाए तो we will get the OR gate। now the third example is NOR as what, AND gate। now NOR को यूज करेंगे and we will draw the circuit diagram for the AND gate। again ये आपका NOR गेट है, ये इसको इनपुट दे दी, x इधर से भी x, इधर से भी x, बबल इट इज x और x फुल कंप्लीमेंट। एक और आर गेट लगाया, बबल, एक इनपुट y, एक इनपुट y और यहां से भी y, तो आउटपुट बन गई y और y पर कंप्लीमेंट। नाउ दोनों जो आउटपुट्स हैं वो इनपुट बन गई अगेन फॉरवर्ड, अगेन अनदर NOR, तो फाइनल आउटपुट इज x
और x कंप्लीमेंट, एक इनपुट ये है, y और y कंप्लीमेंट एक इनपुट ये है, इसका मतलब प्लस, इसका मतलब कंप्लीमेंट। अगेन अप्लाई द डीएम ला, डी मॉर्गन्स ला, x और x डॉट y और y dot complement, the complement of some term is equal to product of individual complement. Now involution law, it is x or x, y or y. Now this is what? This is involution law. Now y or y. Now idempotent law, x or x equal to x, y or y, x and y. So this is what? This is what? कौन सा लॉ लगा? इन्वोल्यूशन। नो दिस इज व्हाट? दिस इज बेसिकली एंड गेट। एंड गेट में क्या है? अगर एक इनपुट x होगी, एक y होगी, तो वी विल गेट x एंड y। तो दिस इज हाउ यू कैन प्रूव दैट NAND एंड NOR आर यूनिवर्सल गेट्स। अब मैं यहां पे एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको बताऊंगा। मैंने यहां लिखा NAND और यहां लिखा NOR। ये वो चीज है जो मोस्टली आपको ऑब्जेक्टिव सॉल्व करने में हेल्प करेगा। तो आपने ये चार्ट जो है ना वो याद रखना है। नाउ NAND सबसे पहले यहां लिखेंगे नॉट, यहां पे और, यहां पे एंड। यहां पे आप एंड लिख लो और यहां पे आप और लिख लो। नो NAND, एक NAND से कितने क्या बना? नॉट गेट, 2 से बना एंड गेट और 3 से बना और गेट। नॉर, 1 से 3 से, 3 नॉर से एंड 1 2 और 3 और 2 से और। अगर इसको और एलैबोरेट करेंगे, ये डायग्राम भी अगर चाहोगे तो मैं लास्ट में आपको ये बताऊंगा जब लेसन कंप्लीट होगा, बिकॉज़ दिस इज नॉट इन योर सिलेबस, वी डू इट इन द इंजीनियरिंग। और तो यहां पे NAND से NOR भी बन सकता है और NOR से NAND भी बन सकता है। ऐसे अगर 4 NAND लगाएंगे तो वी विल गेट NOR, और अगर 4 NOR लगाएंगे तो वी विल गेट द। तो यहां से आपका ऑब्जेक्टिव, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्जेक्टिव क्या निकलता है? कई बार आता है हाउ मेनी NOR गेट्स आर यूज्ड टू क्रिएट AND गेट 3, क्योंकि कंफ्यूजन है, बच्चे के माइंड से निकल जाता है कि NAND 2 यूज होंगे तो AND बनेगा और 3 होंगे तो AND बनेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द यूनिवर्सल प्रॉपर्टी ऑफ द गेट्स। So what is NAND gate? What is NOR gate? How NAND is known as universal gate? Draw the circuit diagrams or prove NOR as NOT, NOR as OR, NOR as AND, or in the reverse NAND as NOT, NAND as OR, and NAND